Praise the Lord and a warm greeting in the name of Lord Jesus Christ. और जय मसीह की सभी को और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। The eternal God given this opportunity to come in this manner and spend some time in the presence of God to learn from the word of God. और अनंत काल के परमेश्वर ने हमको मुझे जो मौका दिया है आज के समय में फिर से आपके बीच में आने का और प्रभु का वचन आप सबके बीच में बांटने के लिए। Last so many months we are meditating and learning about the second coming of the Lord Jesus Christ. और हम बहुत समय से जो सीख रहे थे जो दूसरा आगमन परमेश्वर का कैसा होगा उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे काफी समय से। We learned that the rapture first. और हम सीख रहे थे rapture, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठा ले जाना। और हम सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया को उठा के ले जाना है वो कैसा होगा। In the rapture, there we can see two things will be happened. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया को ले जाने का जो समय है उसमें दो चीजें होंगी। First is the resurrection of the dead ones. और पहली चीज है जो मर गए हैं वो फिर से जी उठे आएंगे। Second, one who living at the time of the Lord Jesus Christ coming, their body will be transformed according to the glorious body. और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति जी रहे होंगे उस टाइम पे उनका जो पूरा शरीर है वो प्रभु की महिमा में बदल जाएगा। In the resurrection, last week we have meditated, three stages are there. और जो हम फिर से जन्म में देख रहे थे उसमें तीन जो चीजें हैं वो देखी थी हमने। तीन क्षण, तीन चरण में देखा, तीन चरण हमने देखे थे। The first and the first fruit of the resurrection, और that is the Lord Jesus Christ. और जो पहला जो फल था वो पूर्ण जन्म में वो हम देख रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित उठे। Secondly, the believers, one who died in Lord Jesus. और दूसरी बात यह है कि जो विश्वासी लोग हैं प्रभु में मर गए हैं वो भी जीवित उठेंगे। The last stage is the resurrection of the sinners. और जो आखिरी और तीसरा चरण था कि जो पापी हैं वो भी जी उठेंगे। The first stage, that is the Lord Jesus Christ resurrected before 2000 years ago. और जो पहला चरण ये था कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो जीवित उठे थे। But we don't know when it will be happen, the resurrection of the church. और हम ये नहीं जानते हैं कि वो जो चर्च है जो फिर से जो कलीसिया तो कैसे उठी थी। No, we don't know when it will happen, when the church people will resurrected. और हम ये नहीं जानते कि जो चर्च के जो लोग हैं वो कब उठेंगे, जी उठेंगे। That will happen when the Lord Jesus Christ will come in the cloud. और वो जब होगा तब प्रभु यीशु मसीह बादलों से आएंगे। After the resurrection of the people of the Lord Jesus Christ, 1007 years after, the sinners will be resurrected. और जब प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं वो फिर से जी उठेंगे उसके 1000 साल बाद पापी भी जी उठ जाएंगे। The resurrection of the people of the Lord Jesus Christ is known as first resurrection. और जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग फिर से जी उठेंगे वो पहला जी उठना होगा।
the resurrection of the sinners is known as the second resurrection. और जो पापी द्वारा जी उठेंगे वो दूसरा चरण होगा, Second resurrection, दूसरा दूसरा पुनरुत्थान. दूसरा पुनरुत्थान होगा. One who in the first resurrection, they are the blessed one. और जो पहले पुनरुत्थान में होंगे वो बहुत जो आशीष पाए हुए लोग होंगे. But in the last resurrection, the second resurrection, that people are the very worst in this world. और जो दूसरा आगमन होगा, दूसरा जो पुनरुत्थान होगा, जिसमें जो लोग होंगे वो बहुत दूरदर्शा वाले लोग होंगे. Because the first resurrected people will be directly enter into the heavenly places. क्योंकि जो पहले जो पुनरुत्थान वाले लोग हैं वो सीधा स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे. But the second resurrected people, that they will go into the eternal fire, the hell. और जो दूसरे जो पुनरुत्थान वाले लोग होंगे वो डायरेक्ट जो सीधी तरीके से जो अनंत काल की आग है उसमें डाल दिए जाएंगे. So it is known as, the first resurrection is known as the blessed resurrection. तो इसीलिए जो पहला जो पुनरुत्थान है उसको आशीष में पुनरुत्थान बोलते हैं. Lastly, we have seen the difference between the first resurrection and the second resurrection. 7 points we have meditated. और पिछली बार हमने देखा था कि जो पहला पुनरुत्थान है और दूसरे पुनरुत्थान के उनके बीच में जो अंतर है वो हमने देखा था 7 चीजों से. The first resurrection is known as the resurrection for eternal life. और जो पहला पुनरुत्थान है उसको बोलते हैं जो अनंत काल का पुनरुत्थान. परंतु the second resurrection is for the judgment. और जो दूसरा जो पुनरुत्थान है उसका हम बोलते हैं न्याय का पुनरुत्थान. The first resurrection of the righteous one, धर्मी लोगों का. और जो पहला जो पुनरुत्थान है वो धर्मी लोगों का पुनरुत्थान होगा. But the last resurrection of the unrighteous one. और जो आखिरी का पुनरुत्थान होगा वो अनधार्मिक लोगों का होगा. The third is the first resurrection belongs to Christ, one who belongs to Christ, one who accepted the Lord Jesus Christ as their personal savior. और जो पहला जो पुनरुत्थान है उसको उसमें वो लोग होंगे जो सीधी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे और पूरा प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होंगे. But in the last resurrection, that people not belong to the Christ because they have not accepted the Lord Jesus Christ. They rejected the Lord Jesus Christ. और जो दूसरे पुनरुत्थान में जो लोग होंगे वो प्रभु यीशु मसीह से दूर होंगे और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे, वो लोग होंगे वो. The fourth difference is the first resurrection, one who dead in Christ. और जो चौथा अंतर है वो है जो पहला पुनरुत्थान है उसमें प्रभु के लिए मरे. No. The resurrection of one who प्रभु में मरे. died in Christ. और जो प्रभु में मरा हुआ लोग. और जो चौथा जो अंतर है उसमें जो वो लोग हैं जो प्रभु में मरे. तीसरा में क्या बोले? Yes brother, yes sister, क्या बोला? तीसरा में क्या बोले? तीसरे में बोला था कि वो प्रभु यीशु मसीह में थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा है, वो प्रभु यीशु मसीह का लोग है. उनका पुनरुत्थान होता है पहला में. जिसका आखिरी पुनरुत्थान में वो प्रभु यीशु मसीह का है नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उन लोग ने तिरस्कार किया, अंगीकार नहीं किया. ठीक है ब्रदर सिस्टर? जी भैया, थैंक यू. The fifth difference, the first resurrection is the best resurrection. और जो पांचवा अंतर है उसका जो पहला जो पुनरुत्थान है वो सबसे अच्छा पुनरुत्थान है. But in the last resurrection,
that is the worst resurrection. और जो आखिरी जो दूसरा पुनरुत्थान है वो बहुत 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 बेकार और दुर्भाग्य रूप वाला पुनरुत्थान है। The sixth difference, the first, the resurrection of the Lord Jesus Christ people, that is the first resurrection, and resurrection of the sinners, that is the last resurrection. और जो छठवां अंतर है उसमें जो पहला पुनरुत्थान है वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए पुनरुत्थान है, और जो दूसरा पुनरुत्थान है उसमें पापियों के लिए पुनरुत्थान है। Seventh point we meditated, resurrection from the dead ones. और जो सातवां अंतर है वो जो हमने देखा है कि जो पुनरुत्थान होगा वो मरे हुए लोगों का होगा। No. From the dead one. जो मरे हुओं का होगा। No. From क्या होता है? उनसे होगा। हाँ, मतलब मरे हुओं में से। मरे हुओं में से। There are so many dead peoples in the earth. और क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे मरे हुए लोग हैं। But in the first resurrection, from all the dead ones, only the believers will resurrect. और जो पूरी दुनिया में से जो विश्वासी भाई लोग होंगे उन्हीं का जो पहला पुनरुत्थान में उनका पुनरुत्थान होगा। मरे हुए में उनसे जी उठेगा, परंतु लास्ट वन, all the dead ones will be resurrected. और जो दूसरा पुनरुत्थान होगा उसमें सारे जो मरे हुए लोग हैं वो फिर से जी उठेंगे। At the resurrection of the last resurrection, before that, all the sinners will be died. और जो आखिरी पुनरुत्थान होगा उससे पहले जो सारे पापी लोग हैं वो मर जाएंगे। That time there is no living one over this world. और उस समय पे कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में। This we have meditated last week. और पिछले हफ्ते हमने ये अध्ययन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद धनोश, आज बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। परमेश्वर आपको सहायता करे। थैंक यू। Today we will meditate, is there any possibility of literal resurrection? If there is any possibility of literal physical resurrection. और आज हम देखेंगे कि ऐसी कोई भी जो मौका होगा कि आज का जिसमें जो शारीरिक तौर से जो पुनरुत्थान होगा। No, मैं पूछ रहा हूँ, I am asking, is there any possibility of literal resurrection? और जो इस समय हकीकत में अभी इस समय पे क्या कोई भी मौका है जो फिर से जी उठने का? No, ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में ऐसी होएगी क्या? बहुत सारे लोग ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हो जाता है, वो होता है क्या ऐसी, है ना? Is there any possibility of literal resurrection? और इस समय पे हकीकत में ऐसा कभी होगा क्या? How it is possible, the resurrection, the dead ones, how it will be possible? और जो पुनरुत्थान है वो कैसे मुमकिन है? We know the peoples died before 1,000 years. और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति मरे हुए हैं वो काफी सालों पहले, हजारों साल पहले मरे हुए लोग हैं। We don't know where is their body. और हम उनका जो शरीर है वो कहाँ है हम नहीं जानते। They mingled in the mud. और उनका जो बारे में मिट्टी में, और वो मिट्टी में मिल चुके होंगे। There is no chance. So many people are asking how Adam will resurrect. How many years? Around more than 6,000 years back, Adam died.
और हम देखते हैं कि क्या ये जो पुनरुत्थान है वो मुमकिन है, क्योंकि जो आदम है वो 6000 साल पहले मर चुका है, उसका तो शरीर भी नहीं मिट्टी में मिल गया होगा। All the saints of the Old Testament peoples died before thousands of years. और जो बहुत सारे संत लोग हैं वो भी काफी हजारों साल पहले मर गए होंगे। Not only that, some peoples got a good funeral services. और यहाँ तक कि नहीं कि बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा उनका जो मरने का जो उनका फ्यूनरल होगा वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अंतिम संस्कार. अंतिम संस्कार बहुत अच्छा हुआ होगा। We know so many people's sepulchre, कब्र, where it is. और हम जानते होंगे कुछ लोगों का जो उनका जो कब्र है वो कहाँ होगी। We know the sepulchre. Sepulchre means कब्र. Abraham, Isaac, Jacob, and their wives. और अब्राहम और यसहाक और उनकी जो पत्नियां हैं They buried in the Machpelah place. और जो मकवेला की जगह में उन सभी को जो दफनाया गया। Machpelah. That is the place known as Machpelah. There, Abraham, Sarah, Isaac, everyone buried. और जो अब्राहम और सारा और इसहाक है उनका जो शरीर है उस मकवेला की जो शहर और जगह है उसमें उनको दफनाया गया है। After more than 3,500 years, around 4,000 years, now also their sepulchre, their cover is in the city of Hebron. और जो 3,500 साल बाद भी जो उनका जो कबर है अभी भी हेब्रोन के अंदर है, मकवेला। But we know so many people died and we don't know where they died, where they buried, no evidence at all. और लेकिन हम काफी लोगों को नहीं जानते हैं जो पहले मरे हुए हैं, उनका जो शरीर है वो कहाँ होगा, उनका कोई अस्तित्व भी हमको नहीं पता। Because some of the people, some of the believers burned in the fire. और क्योंकि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग हैं और विश्वासी लोग हैं वो जो आग में, not अविश्वासी, विश्वासी. जो विश्वासी लोग हैं वो आग में उनका वो मर गए होंगे। आग में जलाया है। कुछ लोगों को हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा भी कई लोगों को जिंदा पकड़ के जलाया है, burn them into the fire. और जो विश्वासी लोग हैं हम जानते हैं कि बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं उनको आग में जानबूझ के उनको जलाया गया है। And then they collected the ashes of their dead body and spread into the air. और उनका जो शरीर जलने के बाद उनका जो राख है उसको उनने पकड़ के जो हवा में उड़ा दिया। But we don't know where it is, the particles of their body. और हम नहीं जानते उनका जो शरीर का जो राख है, उनका शरीर का अस्तित्व है वो कहाँ, कर्ण है, कर्ण है। हम नहीं जानता है उनका शरीर का एक एक कण कहाँ चले गया है। We don't know. और हम नहीं जानते उनका जो शरीर का एक एक कर्ण है वो कहाँ चला गया है। We know so many believers, the animals torn their body and eaten. Animals eaten the believers. और हम जानते हैं बहुत सारे जो विश्वासी लोगों का शरीर है और जो जानवरों ने उनको जो खा भी लिया है। In the ancient times, for the believers, they thrown the living ones in the den of the lions, in the midst of the other wild animals. They will cut and torn and eat their bodies.
और हम जानते हैं जो प्राचीन काल के समय में जो जिंदा लोगों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था और शेर उनको जो चीर फाड़ करके खा जाते थे। No, some of the believers have thrown into the ocean, into the और sea. और जो विश्वासी भाई लोग हैं पुराने समय में उनको पानी में भी फेंक दिया जाता था। So many people's body eaten by whales, big fishes. और उनका जो शरीर है उस समुद्र में फेंकने के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियों ने उनको खा भी लिया होगा। We don't know where their body. और हम उनका शरीर को कहाँ है हम नहीं जानते। Is it possible to raise when the Lord Jesus Christ will come? क्या ये मुमकिन है कि वो फिर से जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे? No, I am asking if it is possible to raise their body from that places. और अगर ये मुमकिन है कि वो फिर से जी उठेंगे जब उन जगहों से जहाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे। No, क्योंकि हम जानता है ना ये जानवर ने बहुत सारा लोगों को डेड बॉडी को खा लिया है, बहुत बड़ा बड़ा मछली हम खा लिया है, बहुत सारों को आग के अंदर जला के उसी का भस्म इधर उधर कर दिया है। उसका बॉडी कहाँ है, उसका बॉडी का कण कहाँ है, पार्टिकल्स कहाँ है, हम नहीं जानता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसी लोगों का शरीर प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम जी उठेंगे क्या? समझ में आया ना अनुष? हाँ asking there is so many people have doubts. और जो बहुत सारे जो लोगों को वो दुविधा होगी। We know in the first century there was one Polycarp. He went into the fire. और हम जानते हैं कि जो पहली शताब्दी में जो लोग हुआ करते थे वो डायरेक्ट जो आग में। Polycarp, one name of the Lord's servant. और जो उस समय पे जो 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 नौकर होते थे जो प्रभु के चेले No, Polycarp, that is the name. As like Georgion, as like Enosh, Polycarp was a servant of God. परमेश्वर के एक दास थे। जो पॉलीकर जो परमेश्वर के दास थे वो डायरेक्ट उनको आग में डाल दिए जाते थे। No, the Ignatius, that is also a person that eaten by the wild animals. और जो इथियोमुस है उनको भी जो जानवरों के सामने डाल दिए गए थे और उनको वो जानवरों ने खा लिया था। There are so many believers died like so. और हम जानते हैं कि बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं वो भी मारे गए थे इन्हीं की तरह। They didn't get any funeral service because nobody know where is their body. और उनका जो अंतिम संस्कार है वो नहीं हो पाया क्योंकि किसी को नहीं पता था उनकी जो शरीर है वो कहाँ है। Nobody on the earth known where their particles of their dead body. और पूरी दुनिया में पूरा जो पृथ्वी पे किसी को नहीं पता है उनका जो शरीर का कण है वो कहाँ है। Is it possible to bring back that bodies together into the glorious body? और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जो मरे हुए लोग हैं उनका बॉडी नहीं पता कहाँ है वो प्रभु की महिमा में बदल दिए जाएंगे? जाएंगे क्या ऐसा पूछ रहा। There is a doubt. जाएंगे क्या? Really this is a good doubt. और ये सच में बहुत अच्छा जो दुविधा है। But we know the Almighty Eternal God can easily recollect the particular particles of each and every believer for any corner of the cosmos of this power. The Almighty Eternal God can easily collect. और जो
अनंत काल के परमेश्वर पिता है वो एक बहुत आसानी से इन सभी का जो शरीर है उनका कर्ण को कहीं भी हो वो इकट्ठा कर लेंगे, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए। Yes. With the power of the Almighty God. Parmesh, the power of the Almighty God. Because He is the omnipotent God. और ये परमेश्वर का जो ताकत है क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। We know one who bring the cosmos from nothing. और हम जानते हैं कि जो किसने इस ब्रह्मांड को एकदम शून्य से इसको रचा है। Yes. Is it possible to do that? Definitely, the God can recollect the particles of the believers. और ये ब्रह्मांड को जो रच सकते हैं वो उनका वो जो मर गए हैं उनका शरीर का जो कण है उसको भी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। Shall we read Philippians chapter 3 verse 21? और हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों का Philippians 3:21. फिलिप्पियों का 3 अध्याय का 21। No, हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। and both clearly, very clearly, the Lord is telling by His power this will be happen. और हम ये क्या एकदम आसानी रूप में देख सकते हैं कि वो अपनी शक्तियों से इसको कर देगा। We know the atom is indestructible. Atom समझता है? सामान नहीं, अणु अनुकूल नो आटम मतलब ऐसी है एटम कण कण आटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल। कभी भी कण खत्म नहीं होता है, वो कभी भी पूरा तरफ से खत्म होएगा नहीं। और हम जानते हैं कि जो कण है वो कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। We know the scientists are telling all the things of the earth made by atoms. और हम जानते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी पर दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है ब्रह्मांड में वो एटम के द्वारा बना हुआ है, जो कण के द्वारा बना हुआ है। That is invisible. We cannot see the atoms. और जो कण है हम उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है। Then from the lack of atoms forms the elements. और जो बहुत सारे जो लाखों जो कण है उसके द्वारा एक एलिमेंट एक चीज एलिमेंट मतलब ये कणों से मिलकर कुछ चीज बनाता है। वो लाखों एलिमेंट बनकर आटम बनकर उसको एलिमेंट में फॉर्म हो जाता है, थोड़ा और बड़ा एक चीज बन जाता है। जो बहुत सारे जो कण हैं उनको लाखों कण मिलकर एक तत्व बन जाते हैं। तत्व बन जाता है ना। That lakhs of elements all together forms a visible thing. और जो बहुत सारे जो तत्व है वो मिलकर एक जो दृश्य जो देखने वाली चीज है वो बन जाते हैं। And it means all the things, whatever it may be, living things or non-living things, everything made by atoms. और हम देखते हैं कि जो जिंदा चीज है और जो बिना जिंदा चीज है वो सब तत्व के द्वारा बनी हुई है।
If they destroy the form, the visible things will be destroyed, but the atom never destroy. और कभी जो तत्व है वो जो टूट जो खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो एटम है और कण है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। We know the things. Nobody can destroy the atoms. और हम जानते हैं कि जो चीज है, जो कण है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। The scientists are proving that an example of the mango tree. और जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक चीज को बोला है कि जो पेड़ है वो आम का इसी पेड़ चीज हो। को नहीं, आटम कण खत्म नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है, नाश नहीं होता है, वो प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक दृष्टांत बता दिया है। साइंटिस्ट लोगों ने जो एक दृष्टांत में बता दिया है ताकि वो चीज सिद्ध हो पाए कि कण कभी खत्म नहीं हो सकता। Take an example of the mango tree. और उन्होंने वो दृष्टांत है वो एक आम के पेड़ का लिया। The woodcutter coming and cut down the mango tree. और जो पेड़ काटने वाला आया उसने जो पेड़ को काटा। Then that make into the wood fire, turn into the wood fire. और उस पेड़ को काटने के बाद उसको उनकी जो लकड़ियां हैं उसको आग के लिए इस्तेमाल की। And when we are using this firewood in the kitchen or for any other time, that became ashes. और हम जब लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं आग वो खाना बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज में के लिए, तो लकड़ियां जलने के बाद वो राख बन जाती हैं। Then we know that ashes used as fertilizers. Fertilizer means the things we are using for the agriculture. और जो राख है उसको जो होने के बाद उसको हम जो उसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पेड़ पौधा जो उगने पाए, खाद में इस्तेमाल करते हैं, खाद के रूप में। खाद में करता है ना। It is used as the fertilizer for the plants. और जब पेड़ लगाने के लिए हम जो खाद का इस्तेमाल करते हैं वो उन राख का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। In the same thing, the mango tree change into the firewood. और उसी तरीके से जो आम का पेड़ है वो लकड़ियों में बदल गया। Then that turns or change into the ashes. और वो लकड़ी है वो राख में बदल गई। Then that turns or change to the fertilizer. और जो राख है वो खाद में बदल गई। Then that fertilizer again come into the another trees which is living. और जो खाद है वो दूसरे पेड़ में चली गई जो जीवित पेड़ है। So this atom or the element of the mango tree, that is rotating. और जो कण है और जो उसका जो बात का जो आम का पेड़ है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही घूमता रहेगा और घूमता रहेगा। Never it destroy. वो कभी भी खत्म नहीं होगा। In the same manner, in the atoms of our body, that will also not destroy at all. और उसी तरीके से जो हमारे शरीर का जो कण है वो भी कभी का नष्ट नहीं होगा। Wherever it may go, the eternal God knows where that atoms, that elements of so and so person's body, where it is lying. और जो हमारे शरीर का कण है वो कहीं भी जाए लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढ लेंगे और बता देंगे कि कोई कौन से व्यक्ति का क्या जो तत्व है और क्या कर्ण है। So God knows where that is lying.
वो कहाँ पड़ा है वो परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर जानते हैं कि वो उस व्यक्ति का कर्ण है वो कहाँ है। Suppose if we think any our forefathers or our parents or our grandparents, they have died, their particles, their this atoms, they will spread in any place of this world. और हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्व माता पिता हैं और पिताजी हैं, वो उनका जो शरीर है, उनका जो कर्ण है, वो कहीं भी होगा। We are buried in a ground. और उनको जो मैदान के अंदर दफनाया गया होगा। Sometimes that particles or atoms went into the tree. और जो उनका जो कर्ण होगा वो पेड़ में बदल जाएगा। Now, which tree is standing near to our grave, where our dead body is buried. That tree is absorbed the atom of our body. और जो पेड़ है, अब यदि वो उसको जो कब्र के पास में लगाया होगा तो उनका जो कर्ण है वो पेड़ में आ जाएगा, और हम देखते हैं कि वो कर्ण उस पेड़ के जरिए जीवित रहेगा। Then that tree somebody will cut and use for making the furniture. और हम देखते हैं कि यदि उसी पेड़ को कोई व्यक्ति काटेगा और उसको जो रोज की जरूरतों में उसको इस्तेमाल कर लेगा। Suppose any person's body buried in India and that furniture exported to Africa. और ये मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति इंडिया भारत में मरा होगा, उसका कब्र होगा उधर पे, और जो उस कब्र के पास में जो पेड़ होगा उसको काटने के बाद जो चीज बनेगी वो अफ्रीका में यदि वो इस्तेमाल हो जाएगी, Then some of the particles, some of the atoms of that body, something in India and some particles went to Africa. और हम ये देखते हैं कि उनका जो कुछ कण होगा वो कुछ कण भारत में भी होगा, और उनका जो दूसरा जो कण होगा वो अफ्रीका में भी होगा। But when the Lord Jesus Christ will come, by the shouting of the Lord Jesus Christ, all the atoms that was lying in Africa, that was lying in the India, that was lying in any other places, that will come together. और जब भी प्रभु यीशु मसीह शोर के साथ आएंगे, तो जब किसी का भी कर्ण होगा, वो चाहे वो भारत में होगा, चाहे वो अफ्रीका में होगा, वो सभी कर्ण एक अपने अपने पास आ जाएंगे। God knows very well whose atoms is this. और प्रभु जानते होंगे और जानते हैं कि वो किसका कर्ण वो कहाँ है। So the God will collect and reunite in each and every person's atoms together. और प्रभु उन सभी कर्ण को इकट्ठा करेंगे और फिर से उसको जो मिला देंगे, और वो फिर से वो व्यक्ति बन जाएगा। Oh, is it not miracle thing? और क्या ये एक चमत्कार नहीं है? Oh, the God is doing the miracle things. और प्रभु परमेश्वर हमेशा चमत्कार करते हैं। No, regarding this resurrection or collecting of the atoms, God is doing a miracle things. और ये जो पूर्ण जन्म है और जो भी जो कर्ण के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह वहां पे जो चमत्कार है उसको हम देखेंगे। God knows very well. और प्रभु सब कुछ अच्छी रीति से जानते हैं। I want to prove this thing with an incident, with an example. और इस बात को सिद्ध करने के लिए एक सिद्धांत को, एक दृष्टांत को हम देखेंगे। This is the incident. This is happened. और ये Not a story. ये जो घटना है उसको ये सच में हुई थी।
है ना. In BC 14th century there was a one Egyptian pharaoh. और जो एक बीजिंग जो जगह है जो 14वीं शताब्दी में जो एक एक ईसा पूर्व 1400 जो सेंचुरी में. 1400 से जो 1400 शताब्दी में जो ईसा पूर्व में ये बीजिंग में एक जगह है उसमें ये हुआ था. इजिप्ट मिस्र मिस्र में ये हुआ था. And we know the kings of the Egypt, they mummified and they put into the coffin as like the same body. और हम जानते हैं कि जो मिस्र में जब कोई राजा मरता है तब उसका जो कब्र को एकदम अच्छी रीति से उसको सजाया जाता है और उसका उसका जो शरीर को उसी रीति में दफना दिया जाता है. That body never corrupt. और क्योंकि जो उनका शरीर है वो कभी भी सड़ता नहीं है. It is known as mummify. और हिंदी में मेरे को नहीं मालूम है क्या बोलता है उसको. वो प्रोसेस को उसको ऐसी बनाता है ना, उसको मम्मीफाइंग बोलता है. और उसको उन जो व्यक्ति को और जो कब्र में पड़े हुए लोग हैं और जो राजा है उनको एक पूरा जो पट्टी में ढक के उनको एक मम्मी जैसा बना देते हैं. That pharaoh's name was Tutumgam. और जो उसका जो नाम है वो तुतुमगम है. In 1922 one person found the sepulcher, the cover of that pharaoh. और जो 1922 में एक व्यक्ति ने उसका जो फेरो का जो कवर है उसको खोजा था. In that he has seen so many things what the pharaoh used all that days. और उस व्यक्ति ने वहां पे जो बहुत सारी चीजें देखी जो उस समय पे जो फेरो ने राजा इस्तेमाल करता था. Their golden ornaments. और उनके जो सोने के जो सोने के जेवर को. Or the food items they have like very much. और उसके जो पसंदीदा खाना को. In that, in a small box, he saw some grains. और हमने और वहां पे एक छोटे से बक्से में उसमें जो बहुत सारा जो खाना था वो रखा हुआ था. नहीं मूंग का दाना है ना. कुछ दाना ग्रेन्स मतलब गेहूं का दाना, चावल का दाना, मूंग का दाना है ना. उसका वो छोटा चीज को ना उसको बोलता है ग्रेन. हाँ, जो वहां पे छोटे से बक्से में वहां पे उसने जो दाने को रखा हुआ देखा था. that grain, that seed dried very much. और वहां पे जो दाना था वो बहुत अच्छी रीति से रखा हुआ था. सूख गया ड्राइड जो सूख गया था. This is he got after 3,500 years. और उसको वो चीज 3,500 साल बाद मिली थी. When these things heard by the scientists, they have tried to whether this dried grain seed will come into the life of a tree. और जो साइंटिस्ट लोगों ने उस जो सूखे हुए दाने को उसको इस्तेमाल किया ताकि जो पेड़ में इस्तेमाल किया. No, ये पेड़ में बदल जाएंगे क्या? ये दाना हम जानते हैं ना, ये दाना हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो अंकुरित हो जाता है. ऐसी अंकुरित हो जाएंगे क्या? वो चेक कर दिया है. जो साइंटिस्ट लोगों ने they took the pot and put some mud. और जो साइंटिस्ट लोगों ने एक जो मट्टी ली. Then they put some fertilizer. और उन्होंने उस मट्टी के अंदर खाद को डाला. Then put some water. और उसमें कुछ पानी मिलाया. After that, the seed
that seed put into this mud. और उसके बाद उन्होंने उस मट्टी के अंदर उस दाने को डाला। Normally, the seed of a moon that will come after 3-4 days. और हम ये जानते हैं कि जो साधारण रीति से कि जो दाना है, जो मूंग का दाना है, वो 3-4 दिनों में निकल आता है। After they take it again and again, after 10 days, there is nothing will happen. और साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश किया कि उन्होंने इंतजार किया और 10 दिन के बाद भी ये नहीं आया। After 15 days, there is no bud is coming. और उन्होंने 15 दिन के बाद भी देखा, वो नहीं आया। After 20 days, there is no leaf, there is no bud is coming. किसका है? माइक चालू है। बंद कर दिया अंकल। और उसके 20 दिन के बाद भी हमने देखा, वो साइंटिस्ट ने देखा, लेकिन वो नहीं आया। But on the 21st day, they have looked and they have seen there a small bud is coming out from this seed. और फिर साइंटिस्ट लोगों ने 21वें दिन में देखा, लेकिन उसमें से, जो मिट्टी में से, बहुत छोटा सा पौधा निकल रहा था। If this 3,500 years back this seed will come into the life, how our body will not come into the life again? और अगर ये 3,500 साल बाद इस दाने में से पौधा आ सकता है, तो क्या हमारा जो शरीर है वो मरने के बाद नहीं आ सकता? In this connection, shall we look to the Romans chapter 8 verse 11? और इस जो चीज को हम देखते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 11वें वचन में, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Oh, hallelujah. Both clearly Apostle Paul is telling one who given the life to the Lord Jesus Christ, one who resurrected the Lord Jesus Christ, in the same resurrected power, the believers will be also live. और यहाँ पे पौलुस एकदम साफ रीति से लिख रहा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, क्या वो तुमको भी नहीं जिला सकता है? Yes, definitely the God will can give the life to the atoms. They will collect it together and become element and became the body. We will get the life again. और ये सच बात है, और ये बिल्कुल भी एकदम अच्छा वो सच्ची बात है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो कर्ण में जो फिर से मिलाएंगे और उसमें से फिर से आदमी को और इस व्यक्ति को फिर से बना सकते हैं, और ये एकदम सच्ची और एकदम सिद्ध वाली बात है। And now we will look how is the resurrected body. और हम अब देखेंगे कि जो पुनरुत्थान के बाद शरीर है वो कैसा होता है। In this connection shall we look 1 Corinthians chapter 15 verse 39. और इसके संदर्भ में हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 39 उसका 39 वचन में, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। And here Apostle Paul is proving the resurrection of the believers. और यहाँ पे जो पौलुस है वो विश्वासियों का पुनरुत्थान है उसको सिद्ध कर रहे हैं। He is telling the body of each and every thing's flesh is different. और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जिसका भी शरीर है, अलग अलग शरीर है, उनका जो खून और हड्डी या मांस है वो अलग अलग है। Animals' flesh is different. और जो जानवरों का शरीर है वो अलग है।
flesh of the birds are different. और जो पक्षियों का शरीर है वो अलग है, The flesh of the fishes are different. और जो मछलियों का शरीर है वो अलग है। When the God created all these things, where they are staying, in which circumstances they are staying, accordingly, God made different bodies, different fleshes to each and every living creature. और जो परमेश्वर ने इन सभी चीजों को बनाया हुआ है, उन्होंने इन सभी चीजों को अलग अलग रीति में और रूप में बनाया हुआ है। We know the fish cannot fly in the air. और हम जानते हैं कि मछली कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकती, The fish cannot live in the land. और जो मछली कभी भी जमीन पर नहीं रह सकती। Only the fishes can live only in the water. और जो मछलियां हैं वो केवल पानी के अंदर ही रह सकती हैं, Because God created fish accordingly. क्योंकि परमेश्वर ने मछलियों को मछलियों की तरह जो उन्हीं की तरह बनाया हुआ है। We know the birds cannot live in the water. और हम जानते हैं कि जो पक्षी हैं वो पानी के अंदर नहीं रह सकते, Their body is different. उनका शरीर अलग है। Some birds can live, है ना, as duck समझता है ना? वो डक समझते हैं अंकल जी, और उसका वो पानी के अंदर नहीं, ऊपर पानी के अंदर रहता है। बतख बतख। So some of the birds can live in the water, but almost all the birds cannot live in the water. और जो कुछ पक्षी हैं वो पानी में रह सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे पक्षी हैं वो पानी में नहीं रह सकते। Men cannot live in the water permanently. और जो मनुष्य है वो कभी पानी के अंदर लंबे समय तक नहीं रह सकता। Men cannot live in the air permanently. और मनुष्य कभी भी आसमान में एकदम स्थायी रूप में नहीं रह सकता। Each and every body of the living creature, God created differently where they are living. और जो शरीर है, अलग अलग शरीर है, उसको उसी की तरह बनाया हुआ है ताकि वो अपने अपने तरीके से रह पाए। So the Apostle Paul is telling the earthly body is different and the heavenly body is different. और इसीलिए जो पौलुस है बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी का शरीर है वो अलग है और जो स्वर्गीय शरीर है वो अलग है। We cannot live in the heaven with this body structure. और हम कभी भी स्वर्ग में जो अपनी शरीर है अभी शरीर के साथ नहीं रह सकते, है ना, this body structure, ये शरीर का घटनाओं के द्वारा कब स्वर्ग में जाकर रह नहीं पाता है। और इस शरीर के वजह से हम स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे। So the God will change this earthly body into the heavenly body due to this resurrection. और इसीलिए परमेश्वर हमारा जो शरीर को, जो पृथ्वी का जो शरीर है उसको बदल के स्वर्गीय शरीर में बदल देंगे। We need a special body, a different body to live in the heaven. और इसीलिए हमको जो दूसरा शरीर और दूसरा जो एकदम जो अलग जो शरीर है उसको वो चाहिए ताकि हम स्वर्ग में रह पाएं। That will happen due to this resurrection. और ये उस पुनरुत्थान की वजह से मुमकिन हो सकता है। Because to change our body according to the glorious body, this resurrection is very, very essential. और इसीलिए जो पुनरुत्थान है वो इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारा जो शरीर है वो बदल के जो महिमा में शरीर हो जाए। Now we look some characteristics of the resurrected body. और इसी संदर्भ में हम कुछ खूबियों को देखेंगे जो स्वर्गीय शरीर है उसमें। We cannot understand completely now the characteristics of the resurrected body.
और जो पुनरुत्थान के बाद जो शरीर होगा उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पा रहे, है ना? अभी नहीं, Now we cannot understand. But अभी नहीं। when enter into the heavenly places, we can understand completely. और हम इस वक्त को अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तब हम सब कुछ अच्छी रीति से समझ लेंगे। And some verses is giving some glimpse, some idea of our resurrected body. और कुछ व्यक्ति कुछ चीजों, जो वाक्य है जो बताते हैं जो पुनरुत्थान के बाद के शरीर के बारे में। है ना? Philippians chapter 3 verse 20 and 21. That we already read previously also, today also. और इसी के संदर्भ में हम फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में देखेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। And there we can see this humble body, this humanly body, it will be transformed according to the glorious body of the Lord Jesus Christ. और वहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, अभी का जो शरीर है, वो बदल के जो महिमा में शरीर हो जाएगा। This humble body, दीनहीन शरीर, दीनहीन शरीर में हो जाए। No. This दीनहीन शरीर will change into the glorious body. और जो दीनहीन शरीर है हमारा, वो जो महिमा में शरीर में बदल जाएगा। And then we will read one more portion, 1 John verse 3 verse 2. और हम उसका इसी संदर्भ में और देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन में, और जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। Oh, बहुत clearly, it is clearly mentioned that now we don't know. But one thing we know, when the Lord Jesus Christ is come, our body became as like the Lord Jesus Christ body. और हम देखते हैं पूरी अच्छी जो क्लियरली जो लिखा हुआ है साफ तरीके से कि जो परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, उनकी तरह हमारा भी शरीर हो जाएगा। Now, the Lord Jesus Christ got the resurrected body before 2000 years ago, in the same nature, in the same style, we will get our body. और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान वाला शरीर है, उनको 2000 साल पहले जो था, वैसा ही हमारा शरीर भी हो जाएगा। Shall we read one more portion? 1 Corinthians chapter 15 verse 49. और इसके संदर्भ में हम एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 14 वचन में, उसमें 49. उसका 15 का 49 वचन में, जिसमें इसका लिखा हुआ है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। And both clearly it is mentioned here that as we have born in the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now our image is earthly image. और यहाँ पे भी एकदम साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हमारा जो पृथ्वी का शरीर है, वो बदल के जो स्वर्ग शरीर में हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के जैसे। But when we will be resurrected, our body will be heavenly body. और जब हमारा पुनरुत्थान होगा, तब हमारा जो शरीर, विनोद, आपका आवाज नहीं आ रहा है। और जो हमारा, अभी आ रहा है अंकल? आ रहा है। और जो हमारा शरीर है, वो पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग शरीर में बदल जाएगा। And we know when the Jesus Christ died and buried,
in the sepulchre cover, his body not corrupted. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मरे तब उनका शरीर को कवर में रखा था और उनका जो शरीर है वो खराब नहीं हुआ था। And without the corruption, he got life again. और बिना कोई बदलाव के प्रभु यीशु मसीह पूर्ण स्थान हो गया था। And shall we look to the Acts chapter 2, verse 30 and 31. और उसके संदर्भ में हम प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में उसका 31 Acts chapter 2. Acts chapter 2. उसका प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 13वें वचन में हम देखेंगे। No, 30 and 31. 30 और 31. उसका प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 30 और 31 वचन में हम देखते हैं। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जो जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छुड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। है ना, उनका देह कभी भी चढ़ता नहीं है, इट विल नॉट करप्टेड। और इसमें हम देखते हैं कि उनका जो शरीर है वो कभी भी नहीं सड़ता। इन भजन इन Psalms 16 verse 10 also we can see the same words. David is also telling the body of the Lord Jesus Christ never corrupted. और इसके संदर्भ में हम भजन संहिता में भी देखते हैं कि दाऊद ने बोला हुआ है भजन संहिता 16 का 10 में कि उनका जो शरीर है वो कभी नहीं सड़ता। It means he resurrected as like the same body. और इसका मतलब है कि जब जो बदलते हैं वो एकदम जो पहली जैसी शरीर से बदल जाते हैं। He come out from the sepulchre, from the cover, in the looking as like the same. और वो कवर से नहीं बल्कि उनका जो बदलाव से आया और वो संत की तरह दिखने लगते हैं। No, there is not much difference in the human body and the spiritual body. The structure, गढ़ना, उसका शरीर का गढ़ना वो और में इसका मतलब है कि ज्यादा फर्क नहीं है। और इसका मतलब है कि उनका शरीर का जो रूप है उसमें और जो इंसान के शरीर वाले रूप है उसमें कोई भी इतना बदलाव नहीं होता। But the quality of the body totally changed. और लेकिन उसका जो शरीर का जो चीज है वो पूरा बदल जाता है। In this humanly body we have the tiredness. और जो हम देखते हैं शारीरिक शरीर का उसमें जो थकावट होती है। We are feeling the thirst and hunger. और हमको प्यास और भूख है और थेस्ट और हंगरी मतलब हमारा इस शरीर में हमकी भूख भी लगता है, हमको प्यास भी लगता है। And also we need sleeping in this body. आवाज नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में बोल के समाप्त करता हूँ। हम जानता है कि इसी शरीर में यस अंकल जी। in this body we have the tiredness, weakness, thirst, hungry, and we need the sleeping, everything we need in this body. और हम जानते हैं कि जो इंसान का शरीर है उसको जो थकावट होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है और जो परेशानियां होती है हमको इस मनुष्य वाले शरीर में होती हैं। But in the resurrected body
this type of the weakness not at all in that body. और जो पुनरुत्थान के बाद चलो शरीर है उसमें ये सब चीजें नहीं होती हैं। The body looking like same to same. और जो शरीर है वो एकदम जो पहले जैसी नहीं लगता है। No. The structure of the body is equal. There is not और, that much difference. और जो शरीर का जो ऊपर का जो पूरा जो 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 बनावट है एकदम सेम का उनका पहले जैसे तो पहले ऐसे नहीं लगता है। What is the quality of this body is widely different. और लेकिन उस जो शरीर जो पुनरुत्थान वाले शरीर काला शरीर है उसका जो गुण है वो पूरा बदल जाता है। So the Apostle Paul is telling Philippians chapter 3:21, our vile body will be transformed according to the glorious body. और इसीलिए जो पौलुस है वो कुरिन्थियों में बोलता है कि हमारा जो शरीर है पूरा जो पुनरुत्थान वाले स्वर्ग शरीर में बदल जाएगा। In this vile body, in this earthly body, there is a diseases, there is pain, there is weeping, there is crying, there is burden, everything is there. और जो हमारा जो पृथ्वी वाला शरीर है उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमारा रोना, हमारा जो भी जो कार्य है, भूख लगना और जो दर्द होना, वो सब कुछ इसी वाले शरीर में होता है। But in the heavenly body, the resurrected body, there is no weeping, there is no crying, there is no pain, there is no death, there is nothing. What a totally changed body we will get it. और लेकिन हमारा जो स्वर्ग शरीर है उसमें कोई भी परेशानियां, कोई मरना और कोई भी दर्द होना और कोई भी भूख लगना, प्यास लगना और रोना, ये सब कुछ नहीं होता है। My time is finished, so I am concluding here. Next week we will look the quality of the resurrected body. और अभी समय खत्म हो चुका है और अगली बार हम देखेंगे जो स्वर्ग के शरीर है उसका गुण के बारे में। Oh, what a peculiar people we are! What a blessed people we are! We are going to get the glorious body, the body of like the Jesus Christ. और कितने आशीष वाले लोग हैं हम, कितना जो विश्वासी अच्छे जन हैं हम, ताकि क्योंकि हम वो शरीर को महसूस कर पाएंगे जो बदलने के बाद जो स्वर्ग शरीर में होगा। Today we have meditated, is it possible to alive the dead bodies which is corrupted, which is mingled into the mud? Is it possible to reunite again? It will come in the form again. और आज हमने अध्ययन किया कि ये हो सकता है कि जो सड़ा हुआ शरीर है और जो मिट्टी में मिला हुआ शरीर है और जो शरीर है जो हमको पता नहीं वो कहाँ है, क्या वो फिर से जी उठ सकता है? Yes, that we have seen from the word of God. It is possible, it is possible, it is possible with the resurrected power of the Lord Jesus Christ. और हाँ, हमने ये वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये सच में हो सकता है और ये फिर से और जरूर होगा। Our body is like the body of the Lord Jesus Christ. और हमारा जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के जैसे हो जाएगा। The structure is same, but the quality is far different. और जो हमारे शरीर का जो ऊपर का जो स्वरूप है वो सही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा जो गुण है वो स्वर्ग शरीर से वो अलग हो जाएंगे। What a great hope we have. ये कितना सौभाग्य वाली बात है, आशा की बात है, आशा की बात है। इसलिए हम परमेश्वर की आगमन के लिए बाट जोते रहे। प्रभु आना बहुत जल्दी है। हमारा ये दिनहीन शरीर, ये हमारा क्लेश शरीर सब बदल जाएंगे। अगले हफ्ते हम देखेंगे ये शरीर का स्वभाव कैसे होगा, कैसे रिसरेक्टेड बॉडी का कैसे उसका गुण है, वो हम देखेंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे, उनके बड़े नाम की महिमा।
थैंक यू अंकल जी, आपने जो इतने अच्छे रूप से और अच्छी तरह से आपने हमको समझाया जो शरीर के बारे में, जो हमारा पुराना शरीर और नया शरीर में जो अंतर है वो भी आपने बताया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, और विश्वासी जन कितने भाग्यशाली लोग हैं और कितने प्रभु में बढ़े, ताकि जो हमको जो शरीर है वो स्वर्ग शरीर है वो मिल सकेगा। और आज का और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जी, सुंदर वचन के लिए। आज शाम को आपने फिर से बहुत सुंदर और प्यारा वचन दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली बातों को भी याद दिलाया, दूसरे